নমস্কার, আমি বর্ষা। খুঁজতে খুঁজতে আজ আমি চলে এসেছি সিনেমা ফর কস্টের অফিসে। এখানে এসেই আমি যেটা জানতে পারি, তাদের নতুন একটা সিনেমা মাই নেম ইজ ইমরান, যেটা কাশ্মীরের ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে পুরস্কার পেয়েছে। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের উত্তরই আপনারা পেয়ে যাবেন আমাদের আজকের যে আলোচনা সভা, যেটাকে আমরা পডকাস্ট বা চ্যাট শো বলে জানি, সেখান থেকেই। এখানে আমি পেয়ে গেছি আমাদের এই সিনেমার ডাইরেক্টর অভিষেক গাঙ্গুলি স্যারকে, সঙ্গে সিনেমার হিরো ইমরানকে এবং তার মাকে। তার মায়ের নাম রত্না চৌধুরী। আমরা এখানে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো একটাই বার্তা, যেখানে আমরা বারবার বলি এবং মানুষ এখন প্রচন্ড জাগরিত এবং তারা খুব ভালো করেই জানে যে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাচ্ছি মানে আমি পাগল নই। সিম্পল ভাষায় বলতে গেলে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে তারাই যায় যারা পাগল নয়। তো ইমরান নামের এই ছেলেটি একটি বাইপোলার ডিসঅর্ডার বলে একটি রোগ থেকে কিভাবে আবার সাধারণ পৃথিবীতে ফিরেছে সেই নিয়েই গল্প। তো প্রথমেই আমরা কথা বলে নেব অভিষেক স্যারের সাথে। তো আপনিই বলুন আমাদের এই যে মাই নেম ইজ ইমরান, এই সিনেমার মেন মূল বক্তব্যটা কি? Thank you, Borsha, for asking me this question. First of all, let me clarify, we have not got an award. The award was the appreciation we got from the audience present, the judges, the entire organizing committee, and I think that is priceless. So it was highly appreciated, and it had actually a special screening. We were not there in the competitive section. So this was specially screened as a tool of communication, as a tool of awareness, as a special vehicle of sensitization, because Kashmir itself is also suffering from substance abuse problem. So when the organizers spoke to me, I thought that I just requested them that why don't you specially screen My Name is Imran, which is very much based on a true story, and when Imran himself will be present, it will be really very powerful. The film screening with Imran's self-presence would add to the motivation and to inspire many more minds who are silently suffering. Now, coming back to the how did My Name is Imran happen? Now, I have been making films on mental health. Cinema for a Cause does films. The tagline is Simple Cinema Touching Lives. So we make very simple stories, but the ultimate motto or the ultimate, at the end of the destination, we would like to touch lives. We have been doing many films, web series, podcasts on mental health. So My Name is Imran, one of those, but with a difference. In the sense, in many of my other stories, we have used real actors, not the real case study, original human beings. So we have appointed actors, or we have taken actors to perform in the role of others. But in this particular case, it was Imran himself, it was Imran's mother, Ratna Chaudhuri herself, who came in front of the camera and performed. So it was much, much more believable because they were telling their own story. And in mental health all over the world, the one word which echoes, if you share your story, your illness or the agony which you're going through really lessens to a great extent. Absolutely. So My Name is Imran was one such case, or one such special initiative of Cinema for a Cause, to share Imran's story, to share Ratna Chaudhury's story, tell the mothers, tell the Imrans of other families that it's not all lost. You have to fight it out. You have to share your story. You have to be companions of each other. Absolutely, sir. Which they have so wonderfully been. True. So when I saw Imran for the first time at Open the Doors, which is one of the most celebrated mental health events of Kolkata, Jesus. organized by Turning Point, headed by world famous psychologist Ishita Shanyan, Jesus. I was mesmerized. I was so immersed in his powerful performance. And obviously before that, or after that, I heard about what Imran was suffering from, bipolar disorder. I couldn't believe that a man so powerful, so possessed on stage, could also have his silent suffering hours too. So I told Imran, why don't we make something on your life? But you have to take your familial or family's consent.
So he said, हाँ हाँ आप एक बार अम्मा से बात कर लीजिए. So I told Ratnadi that can we do something, because generally most of the families who have such silent sufferers, they are on the denial mode. Absolutely. They think they will be ostracized. It's not at all that. You have to break this glass ceiling. You have to break this barrier. This is something wrong. As Bosha said, that you go to a psychiatrist doesn't mean that you have lost it. It is just to start or just to trigger a new beginning in life. Absolutely, sir. Absolutely. So I really salute this woman, Ratnadi, who Absolutely. said, I understand. We are with you. Abhishek Da, you make the film. We would like to bring in a ray of light in those families who are suffering silently. There are many more like Imran. There are Yes, sir. many more like me, who at times we really need a path in front of us. जी सर. True. Mental health activists, mental health professionals जी. are trying to hold our hand, and with them we would like to walk the journey of life. जी सर. So salute to this family, salute to Thank you, Imran, sir. salute Thank to you, sir. Thank you. Ratnadi, you know, Thank who you. came forward. Such a gutsy family, such a brave man, because they believed that this one film, My Name is Imran, can make a difference. So this was made about 4-5 years back, and it has been shown in many festivals. If you go to YouTube, you will see the comments and how people have really commented from their hearts all over the world. They have said, Imran, we have people like you. You have to, and that you have shared your story, Ratna, that you have really shown how you care for Imran. This will really break barriers. This will really open many windows and doors of those houses where many more Imrans are suffering. So we are really proud that Kashmir World Film Festival has screened it, has appreciated it. I have seen all the videos, the bites which Imran has wonderfully shared with us, and also many of the organizers, the local hosts, they have wonderfully taken. So it has made a positive vibration there. Yes. If even one water drop has fallen in the beautiful Dal Lake, a drop of positivity, a drop of sensitization, जी सर. a ray of light which awakens the shikaras there, we would think, My Name is Imran has done something. Yes. Absolutely. Absolutely. এবার আমি কথা বলে নেব ইমরানের সঙ্গে, যার পুরো জীবন নিয়ে তৈরি হওয়া একটি সিনেমা, যেটা কাশ্মীরের ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গেল। তো এবার আমি ইমরানের থেকেই জানতে চাইবো তার এক্সপিরিয়েন্স কেমন ছিল কাশ্মীরে, জাজদের থেকে তিনি কিরকম প্রতিক্রিয়া পেলেন, আমাদের ভূস্বর্গ কাশ্মীর তাকে কিভাবে আপ্যায়ন করে নিল। बहुत बहुत शुक्रिया वर्षा. कश्मीर उतरते वक्त से ही मैं गया था बहुत पहले. ये सेकंड टाइम था और बहुत सालों बाद जा रहा था. उतरते ही हमारे वहाँ फैमिली है, इकबाल भाई, शब्बीर भाई, हर कुछ बदल गया. और मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने से पहले एक शायरी बोलूँगा अगर आपकी इजाज़त हो तो. Absolutely. जी, और वो है कि कोई ज़रूर कुछ कर रहा है, कोई ज़रूर कुछ कर रहा है, कोई ज़रूर बहुत दुआ कर रहा है, कोई ज़रूर कुछ कर रहा है, दिल का आलम बदल रहा है. कोई ज़रूर कुछ कर रहा है, दिल का आलम बदल रहा है. मिल रही है मुझे थोड़ी सी सुकून, इज़्ज़त, मोहब्बत. मिल रही है मुझे थोड़ी सी सुकून, इज़्ज़त, मोहब्बत. कोई मुझसे प्यार कर रहा है. तो कश्मीर प्यार कर रहा था और मैं कश्मीर को प्यार कर रहा था. कश्मीर फिल्म फेस्टिवल के उस सुरूर में डूब गया था. वहाँ मुश्ताक सर थे, रजत कपूर सर थे, उसके बाद मैडम थी मेहरुन्निसा मैम. तो माय नेम इज़ इमरान, तो ये नाम बहुत बाद में आया. इसके पहले बहुत सारे नाम थे, अभिषेक सर, अम्मा और मेरे सारे दोस्त जो उस मुश्किल दौर में मेरा हाथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा. एक सपोर्ट सिस्टम हमेशा मेरे साथ था. व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द डार्केस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, तब अभिषेक सर ने मुझे हौसला दिया कि इमरान तुमको करना है, अपने स्टोरी को बताना है, क्या पता इससे कुछ और लोग इंस्पायर हों, वो भी आगे बढ़ें, वो भी अपने स्टोरीज को सामने लाएं. और जितने इमरान आज अंधेरे में है वो अपने टैलेंट से, अपने हिम्मत के बलबूते से फिर से एक रोशनी वाली जिंदगी में आए.
So my name was is Imran, was highly appreciated by Kashmir, by the Kashmiri students, by Mushtaq sir. Special screening था इसका. जितने भी वहाँ के top personalities थे, they were all there. They all separately told me, Imran, you know, we love your movie. अभिषेक सर को जाके हमारा thank you बताना. So I guess I answered your question. जी. এটা তো ছিল আমাদের কাশ্মীরের প্রতিক্রিয়া, কিন্তু এই যে কলকাতা থেকে কাশ্মীর এই যাত্রা, কলকাতার লোকজন কিভাবে অ্যাপ্রিশিয়েট করলো? কলকাতায় মাসিরা তো আমাকে ওই মাই নেম ইজ ইমরান পরে সেলিব্রিটি বানিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, বললে ঠিক। तो मेरे मासी और जो घर वाले यहाँ कलकत्ता में हैं, उनके लिए ये था कि हमारा बच्चा स्टार बन गया, हमारा बच्चा सेलिब्रिटी बन गया, माय नेम इज इमरान चमक गया, अरे इमरान तुमने क्या कमाल कर दिया, कश्मीर में तुम छा गए। इज्जत अचानक से बढ़ गया, पूरा मौसम चेंज हो गया लाइफ का। यू नो, वो जो एक स्पार्कलिंग मोमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने लाइफ में, जो हमारे कॉन्फिडेंस को फिर से बूस्ट कर दे, हमें फिर से खुद से मिला दे, हमें फिर से वो ताकत दे कि हम आगे बढ़ सके, दैट वाज माय नेम इज इमरान इन कश्मीर, वेयर एवरीवन गेव मी, saw me in that high respect place कि yes, Imran has done something. So आप में भी वो हुनर है, आप में भी वो टैलेंट है, चाहे मुझे पता है कितना मुश्किल होता है when you have when you know a mental illness is attached to your life and which you are going through, कितना tough होता है to walk out of the house and face the world and do something, but strength is in each and every human being. दूसरे से हौसले की जरूरत नहीं, पहला आप खुद को हौसला दीजिए कि आप में वो हिम्मत है, आप कर सकते हैं। प्लीज स्टैंड अप, राइज अप टू लव योरसेल्फ एंड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। তো আমি যতটা জানতে পেরেছি, ইমরানের এই উঠে আসার পিছনে সব থেকে বড় হাত ইমরানের মা Absolutely. রত্না ম্যামের। Absolutely. তো আমি জানতে চাইবো আপনার থেকে এই সিনেমাটা কতটা প্রাসঙ্গিক আজকের সমাজের জন্য? मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे ये वर्ल्ड 5th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कश्मीर में हो रही है इसका पहले पता चला, तो मैंने इस बात को अभिषेक जी से शेयर किया कि कैसे क्या किया जाए, इमरान जाना चाहता है। तो उन्होंने अपने नज़रिए से अपने तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ भिजवाए, वहाँ पे पूरी इसकी मदद की शब्बीर हक्काक साहब, शब्बीर अहमद हक्काक, जो कि खुद एक एक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं इस दुनिया, और इकबाल सर जो है जावेद इकबाल, उनकी ट्रैवल एजेंसी है, लेकिन ही वाज अ ग्रेट 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 होस्ट फॉर इमरान, लविंग इमरान, माने ड्वेलिंग था इमरान का वहां पर। उन्होंने अपना ऑफिस बंद रखा सो दैट ही कैन बी विद मी। इकबाल भाई ने अपना ऑफिस बंद रखा, और उस वक्त शब्बीर हक्काक साहब की वेब सीरीज चल रही थी, वो कभी कभी अपने सीरीज में जा रहे थे, कभी कभी टैगोर हॉल आ रहे थे जहाँ पे ये माय नेम इज इमरान स्क्रीनिंग हो रही थी। और उनके जो डायरेक्टर हैं मुश्ताक अली साहब, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने स्पेशल कैटेगरी में इस फिल्म को वहाँ पे स्क्रीनिंग की, और वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स भी हुए। इमरान को बहुत प्यार दुआ उन्होंने दिया, और एक सर्टिफिकेट जब इमरान को मिली और उसका बाइट जब मुझे मिला, तो यकीन मानिए मेरे ज़ारो कतार में रो रही थी कि बच्चा मेरा स्टेज में जा रहा है और उसको सर्टिफिकेट मिल रही है। माय नेम इज इमरान को कलकत्ता से कश्मीर का सफ़र जिसके आगाज़ शुरू किया था अभिषेक जी ने, जो अभी भी चल रहा है, कश्मीर की मिट्टी, इसको मैं ये सोचती हूँ कि जितनी माय नेम इज इमरान की खूबियां हैं, तरक्की है, दुआ है, ये कश्मीर वाले भी वो ओन करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना, वहाँ पे ये मसला बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं डरते हैं लोग बात करने में। तो मैं एक माँ हूँ जो इमरान के साथ हर कदम में उसके साथी हूँ। तो जब इमरान को कुछ कैफियत ऐसी होती है जो तकलीफदेह होती है, डॉक्टर के पास जाना होता है, तो मैं पहले ही इस काम को, हर काम को छोड़ के समझती हूँ कि मुझे करना चाहिए। तो मेरी ये आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपके वहाँ पे ऐसे कुछ घर पे ऐसे हों शख्स जो, और ये आपके मोहल्ले में हो, तो आप उनसे जाएं, बात करें। बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये है ना, ये मेडिसिन से काम नहीं होता। हमारे अभी इमरान के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अल्ताफ, वो निमहंस से ही हैं, कलकत्ता में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं उनके पास जब जाती हूँ ना, तो लगता है कि मेरा भी इलाज इमरान के साथ साथ हो रहा है, क्योंकि वो ना मुझे वैसे ही सिखाते हैं जैसे वो इमरान को बोलते हैं कि यू आर अ मदर बट यू हैव टू बी अ सुपर मदर। तो ये जेम्स बॉन्ड वाला मुझे
मुझे उस वक्त आ जाता है कैफियत की मैं इमरान के मूड स्विंग के साथ में कैसे भी स्विंग करूं। तकलीफदेह होती है लेकिन स्विंग करना पड़ता है, हर माँ को हर हालात में स्विंग करना पड़ता है, चाहे वो अंदर से हो चाहे वो बाहर से हो। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा जी, अम्मी जी, कि जब मैं रिसेंटली व्हेन आई मेट अ डॉक्टर, Yes. उन्होंने मुझे कहा इमरान कभी भी खुद को लेबल मत करना कि मैं बाइपोलर हूं, ऐसे मत बोलना, जी, तुम इमरान हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारी अपनी खासियत है, अपनी टैलेंट है। ये एक बीमारी, किसी को डायबिटीज है, किसी को अलग अलग किस्म के प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, वैसे इसको हल्के में लो, इसको इतना सीरियसली मत लो कि तुम इसके बोझ तले इतने वीक हो जाओ कि तुम मेंटली कुछ कर ही नहीं सको, सोच ही नहीं सको। नहीं, सो डोंट लेबल योरसेल्फ सो मच विथ योर इलनेस कि मैं ऐसा हूं। नहीं, आप बहुत अच्छे हैं अपने आप को। मुझे एक लाइन मेहरुन्निसा मैम का बहुत अच्छा लगा अम्मा, वो है कि उन्होंने लिखा स्पेशली बड़े करके कि बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। यस, यस, तो उन्होंने ऑलरेडी मेरा कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया। सो अपने आप को हमेशा एक अच्छा समझिएगा कि यस यू आर a very talented, a very valuable human being. Love yourself and you're going to do wonders. So don't label yourself with a sickness so much. That's it. एक वाकया मैं बताना चाहती हूँ इमरान का, मूड स्विंग का। जैसे हम बैंगलोर में जब इमरान को एक अटैक होता है, ये नर्वस क्राइसिस होता है, एक एंजाइटी अटैक बोला भी जा सकता है, जब वो डरने लगता है, मतलब उसको लगता है कि दुनिया शायद वो दुनिया को छोड़ के कहीं पीछे जा रहा है। तो वैसा मैं उस वक्त मैं कलकत्ते में थी और ऐसा मुझे उसका अटैक का खबर आया, तो मैं फौरन बैंगलोर गई। तो डॉक्टर ने खाली इतना ही मुझे बताया, फोन से मेरी बात हुई कि हाउ टू गो द नेक्स्ट डे, अबाउट ऐसे कैसे किया जा सकता है। कोलकाता से गई बैंगलोर, इमरान को लेकर सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल गई। द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साइकोलॉजिस्ट है मिस्टर सुब्रमण्यम, उन्होंने देखा। उस वक्त इमरान उनका हाथ पकड़ के ये कह रहे हैं कि सर मुझे अभी एडमिट कीजिए, वरना मैं जितनी ऊंचाई उस हॉस्पिटल की है वहां से जंप कर लूंगा। तो ये उसकी कैफियत थी उस वक्त। हमारे साथ करीब 10-12 लोग थे जो हमारे रिलेटिव भी थे, फ्रेंड भी थे। तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं होता है, वी हैव टू सी योर केस, आपका पिछला जो रिकॉर्ड है वो भी देखना है, क्या मेडिसिन आप लेते थे, वी हैव टू इवैल्यूएट योर हिस्ट्री, यू हैव टू गेट एडमिटेड। तो वहां पे उस वक्त गणेश पूजा थी बैंगलोर में, तो सीट नहीं थी वहां पर, वो जिस डिपार्टमेंट पे उसका एडमिट करेंगे। तो हम लोग निकल कर फॉर लंच हम लोग एक मॉल में आए, जस्ट ऑपोजिट द हॉस्पिटल। तो मॉल में आए, वहां पे उस वक्त स्विगी का प्रमोशन चल रहा है और एक कर्नाटक के बेस्ट आपका जो डांस ये है शिक्षक हैं, वो इसको वहां पे प्ले कर रहे हैं, रैंडमली सबको कॉल कर रहे हैं, एंड हुएवर इज देयर नोज डांस, वो उनके साथ कोरियोग्राफर के साथ डांस कर रहे हैं। ही इज अ कर्नाटकी कोरियोग्राफर, नाम माफ कीजिएगा मुझे पता नहीं। तो वो करते करते ना वो इमरान के करीब आ गए और इमरान ने अपना ऐसा रेस किया कि मैं करना चाहती हूँ। यकीन मानिए, जो बच्चा मेरा 15 मिनट पहले बोल रहा है कि मैं माले से जंप करूंगा, वो कोरियोग्राफर के साथ अपना डांस कर रहा है, एंड लिटरली कोरियोग्राफर वाज लुकिंग एट इमरान्स नेक्स्ट स्टेप. Imran was not following the choreographer, rather choreographer was following Imran, and everybody was shouting. वो ऊपर में भी balcony वैसा था, everybody was cheering up. और मैं सोच रही थी कि ये क्या हुआ, 15 मिनट 5 वो कुछ और कह रहा है, अभी कुछ और कर रहा है। तो वहां पे पता नहीं था, हाँ, और फिर हॉस्पिटल में जब एडमिट, same guy was dancing, the same guy got back into deep sadness. फिर जब हॉस्पिटल में हम लोग आए, जब एडमिट हुआ, तो हम लोग एक रूम में थे, शेयर कर रहे थे वो रूम। तो जब कॉरिडोर में चलते थे ना, तो इमरान मुझे कहता था कि अम्मा, आई डोंट बिलोंग टू दिस ग्रुप, I am not like these people. I said, yes, that is why we are here, to evaluate and to see the difference कि किसको कैसे इलाज की जरूरत है। कभी किसी को मैंने ऐसा भी देखा है कि डिमेंशिया के 80 साल की उम्र के एक है जनाब, वहां पे एडमिट थे, उनके बेटे अमेरिका में हैं, वो एक खाली केयर गिवर रख दिए टू लुक आफ्टर हर फादर, बट एवरी कॉल वाज कमिंग इन दैट पर्टिकुलर कॉरिडोर, ही वाज थिंकिंग कि मेरा बेटा फोन किया, लेकिन बेटा का कोई फोन नहीं आया था जब तक हम लोग वहां थे। उसके बाद जब डॉक्टर आने लगे ना इमरान के पास, तो मैंने उसको बोला, एक होता है हेलोपेरिडोल करके एक स्पेशल इंजेक्शन होता है, जो मूड स्विंग जब मैनिक फेज में चली जाती है तो उसको इंजेक्ट किया जाता है, उसके लिए कंसेंट लगता है पेरेंट्स का। तो जब वो लोग आए कंसेंट लेने, तब मैंने बोला कि
इमरान जैसा है, जैसा दिखता है और जो क्राइसिस है, आपने कभी इमरान की पोइट्री पढ़ी है? इमरान को उसके पोएट्री से भी जाना जा सकता है। तो वहां पे एक डॉक्टर थी जो झारखंड से थी, बाकी तो सब वहां के कर्नाटक स्पीकिंग ऐसे हैं। तो वो झारखंड के जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि मेरे बात पर उन्होंने ध्यान दिया। मैंने उन डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज इमरान की पोइट्री सुनिए और इमरान की पोइट्री पढ़िए कि उसका दिमाग क्या सोचता है। दवाई तो है, लेना है फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ हिज माइंड सेट, बट आप देखिए वो सोचता क्या है। तो हम लोगों को बाकायदा बुलाया गया, एक बहुत बड़ा हॉल रूम है वहां पे, जो झारखंड से डॉक्टर थी एंड ही वाज, और इनकी माशाल्लाह याददाश्त बहुत अच्छी है इमरान की। वो तो बगैर कागज देखे मैं सेटल कर रही थी उसकी पोइट्रीज की। देखिए आप लोग, मदर जैसे होते हैं कि बच्चे के जो खूबी है, इवन ही इज अ टॉडलर और उससे बड़ा कि मेरा बच्चा ये करता है वो करता है, वैसे मैं दिखा रही थी कि देखिए उसका ये काम है। बट इमरान वाज आउट राइट बोल रहे थे अपनी पोइट्री एंड शी वाज ट्रांसलेटिंग इट टू अदर। आप यकीन मानिए सिर्फ इसकी इमरान की पोइट्री ने नजरिया बदल दिया डॉक्टरों का कि ये एक शायर है, इसके अंदर एक क्रिएटिविटी है। तो इसको ये इंजेक्शन नहीं देते हैं, वी माइट गो टू द मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिसिन के जाते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस से हम लोग गुजरे हैं कि इसकी पोएट्री भी इमरान के डायग्नोसिस में काम आ गई। जो माय नेम इज इमरान में अभिषेक सर ने उनकी पोएट्री के जरिए इमरान को पोर्ट्रे किया कि कब कब उसके हालात बदलते हैं और कब कब बच्चों के साथ वो खुश होता है, कब वो अपना जो उसका जो चलता है टासल्स लाइफ के साथ कि मैं ये हूं या ना हूं, तो वो भी उन्होंने पोइट्री के जरिए ही दिखाया। तो आई एम थैंकफुल टू अभिषेक दा, आई मीन ही डिड वंडरफुल जॉब। उन्होंने माँ बेटे को एक करके दुनिया के सामने इसको रखा ताकि वो लोग डरे नहीं, वो लोग आगे आए और इसका इलाज है। बट ये पागलों में नहीं है, बस कुछ कुछ है हमारे कैफियत होते हैं कि कोई बहुत गुस्से वाला होता है, उसका एंगर क्राइसिस होता है, उसको संभालने के लिए भी डॉक्टर की जरूरत है। किसी किसी का डिप्रेशन होता है, वो बोलता नहीं है, अपने आप में गुम हो जाता है, उसको बोलना होगा, उसके लिए भी है कोई माइल्ड मेडिसिन होती है, लेकिन हेल्प बहुत जरूरी है। यू हैव टू आस्क हेल्प। थैंक यू। আমাদের যে মাহলটা একটু থমথমে হয়ে গেছে, তো চেঞ্জ করার জন্য আমি ইমরানকে বলবো তার একতারা দিয়ে কিছু একটা মন ভালো করা কিছু শুরু করতে। ওকে, আমি একটু সঙ্গে হ্যাঁ, मन को मारे ना रहियो, वर्षा जी क्लास। मन को मारे ना रहियो, मन जैसा कौन साधो, मन को मारे ना रहियो, मन जैसा कौन साधो, तुम अपने मन की सुनाओ रे, तुम अपने मन की सुनाओ रे, रे बंधु मन की गुनगान गाओ रे, नांगा छिक नांगा धिंग नांगा छिक नांगा, मन की गुनगान गाओ रे। जग है बड़ा लुटेरा उसकी ना सुनियो भैया, जग है बड़ा लुटेरा उसकी ना सुनियो भैया, तुम अपने मन की सुनाओ रे, अरे बंधु तुम मन की सुनाओ रे, 1 2 मन की गुनगान गाओ रिंग नागा नागा नागा, मन की गुनगान गाओ रे। तो दोस्तों यही कहना है, पहला डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि वेदर आपको एक बेटर लाइफ चाहिए कि नहीं। मैंने चूज किया था हाँ मुझे एक बेटर लाइफ चाहिए, क्योंकि लाइफ इज वंस, तो मुझे सब कुछ चाहिए, खुशी, वो हैप्पी वाला लाइफ चाहिए। उसके लिए हाथ थामना पड़ेगा, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना पड़ेगा, राइट प्रोफेशनल के पास जाना पड़ेगा। केयर गिवर, जैसे अम्मी मेरी केयर गिवर हैं, मेरे जर्नी में बहुत सारे ऐसे केयर गिवर आए जिन्होंने मेरे जर्नी को स्मूथ बनाया। बगैर उनके आई वुडंट हैव हील्ड, बगैर उनके मैं आज आपके साथ बात नहीं करता। सो अपने प्रॉब्लम को अपने तक मत रखिए, पहले डिसाइड कीजिए कि मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। अगर निकलना है तो राइट इंसान के पास जाइए, किसी का हाथ थामिए और थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए। वादा करता हूँ रोशनी आपको सलाम करेगा। Close to my name is Imran.
আচ্ছা, নেক্সট আমি একটা কোশ্চেনে যাবো যে একটু মুডটা ভালো হলো, আবার একটু আমি খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছি, সরি। যখন ফার্স্ট জানতে পারলে যে এরকম একটা রোগ হয়েছে, মানসিক রোগ, ফার্স্ট প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? I was like, আমার এটা হতে পারে না। হিন্দি। हाँ, मुझे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये हो नहीं सकता। मुझे लगा कि इसके ये षड्यंत्र है मुझे दबा के रखने का, ये षड्यंत्र है मेरी माँ का मुझे पागल बनाने का। मुझे ये बीमारी नहीं हो सकता, ये बाइपोलर ओसीडी। मैं एक कलाकार हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ। बहुत लोग हैं, अरे मैं तो उनसे बहुत अच्छा हूँ, मेरे को कैसे हो सकता है ये बीमारी। लेकिन जब मैंने खुद अपने एपिसोड्स को देखा कि रिक्शा में जो अटैक हुआ था मुझे, कि बहुत सारे सोच मेरे दिमाग में आ रहे थे कि अम्मा मेरा हाथ मत छोड़िए, मैं यहाँ से जंप मारूंगा, तो ये तो कोई नॉर्मल आदमी नहीं करेगा ऐसे। ये एक फियर, जरूर कुछ ना कुछ तो दिमाग के अंदर एक प्रॉब्लम हो रहा है, उसी की वजह से ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। बाकी लोग तो रास्ते में चल रहे हैं, उनको तो नहीं हो रहा है, मुझे क्यों हो रहा है। बहुत टाइम लगा वर्षा मुझे इस बात को खुद को समझाने में कि हाँ मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई ओवर रनिंग माइंड है, या थॉट में कोई प्रॉब्लम है, या कुछ ओसीडी है किसी चीज का, कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए मुझे कंसल्ट करना जरूरी है। आई हैव टू स्पीक टू अ साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, आई हैव टू गो टू अ राइट प्रोफेशनल कि सर मेरे दिमाग में ये सवाल है, क्यों। तो ये सवाल के जवाब वो राइट प्रोफेशनल्स ही दे पाएंगे, मैं तो जवाब नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। तो इनिशियली यस आई हैड डिनायल कि ये मुझे हो नहीं सकता, but it took a long time to accept that yes I still have medicines, और मेडिसिन खाना is the worst thing. I hate medicine. कि यार मैं खट्टा इंसान क्यों मेडिसिन खाऊं यार, it's sign of weakness. But yes, inshallah I have also this feeling that एक दिन मैं मेडिसिन से भी बाहर आऊंगा towards a more non better life. But फिलहाल yes हमारे बॉडी में एक केमिकल इम्बैलेंस होता है जिसके लिए मेडिसिन इज द solution. जैसे मैं लिथियम खाता हूँ because lithium falls down. There is a Serta which is a mood kind of thing. There is a medicine because you have a so running mind that will not let you sleep. So in order to soothe your mind, they give you a medicine which helps you to sleep, because if you don't sleep, you'll get more mad, you'll get more bad thoughts. So all of this that so am I close to the question? Yeah. এবার আমি যাবো রত্না ম্যামের কাছে। অ্যাজ আ মাদার, ওই টাইমে সিচুয়েশনটা নিয়ে তখন আপনার মানসিক অবস্থা কেমন ছিল, মানে নিজেকে তখন কি মনে হচ্ছিল, বা সেই টাইমটা আপনি কিভাবে ফাইট করলেন পুরো এই বিষয়টার সাথে? आपका सवाल था कि जब डायग्नोसिस हुआ बाइपोलर इमरान को, तो उस वक्त मेरा रिएक्शन क्या था। तो मुझे उस वक्त डॉक्टर देबाशीष रॉय इमरान को देख रहे थे। एक एपिसोड था उससे पहले, बहुत दर्दनाक एपिसोड था। तो उसके बाद मुझे जब फाइनली डिस्चार्ज करेंगे इमरान को, तो डॉक्टर के पास हम गए थे, और मेरा बड़ा बेटा जो सिडनी में है आरिफ चौधरी, वो आया हुआ था कोलकाता। तो वो मुझे बोल रहा अम्मा यू हैव टू टेक 8 GB पेन ड्राइव। तो मैंने बोला पेन ड्राइव का क्या काम है, वहां पे डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो पेन ड्राइव का क्या काम। तो उन्होंने बोला नहीं, डॉक्टर ने बोला है व्हेन यू कम टू सी मी यू गेट अ पेन ड्राइव विथ यू। तो गए, तो डॉक्टर ने मुझे, वो लोग क्या करते हैं डिस्चार्ज से पहले अलग अलग बात करते हैं। तो इमरान उस वक्त नर्सिंग होम में था, मैं और मेरा बेटा आरिफ गए थे। तो उन्होंने मुझे बोला दिस इज बाइपोलर, ही इज सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर क्लस्टर बी, बाइपोलर 2, मतलब ऑब्सेस्ड हो जाना किसी चीज से, ओसीडी। तो ये थोड़ा समझने में मुझे वक्त लगा था उस वक्त। आई वॉज रियली शॉक्ड कि ये क्या है, इज इट अ मेंटल डिसऑर्डर, क्या क्या इसमें क्या आगे कैफियत होगी, हाउ टू हैंडल इट। तो उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। द प्रेस्क्रिप्शन वॉज फुल विथ मेडिसिन, 8 to 9 medicines were prescribed for him. उसके बाद उसकी डिस्चार्ज हुई। मुझे ऐसा भी बताया गया कि इमरान को अकेला मत छोड़िए। तो हम लोग एक मेल केयर गिवर रखे थे, क्योंकि मेरा ट्रैवल एजेंसी है, मुझे ऑफिस जाना था। तो एक उनका नाम क्या है, एल्फ्रेड, मिस्टर एल्फ्रेड, जो नर्सिंग होम में इमरान को देखते थे, उनको हमने अपने घर में 8 आवर्स ड्यूटी में रखा। जब तक मेरे एब्सेंस में वो इमरान के साथ घूमने जाएंगे, कार्ड खेलेंगे, हर वक्त इमरान के साथ रहेंगे। तो ये उस वक्त इमरान तो डरा हुआ था ही, डॉक्टर ने मुझे डराया नहीं, उन्होंने मुझे अवेयर किया कि दिस कैन हैपन, यू डोंट लीव इमरान अलोन।
तो हम लोग जहाँ उस वक्त रहते थे हाईलैंड पार्क, तो उसके पीछे बहुत अच्छी एक पार्क थी। तो कभी कभी अगर इमरान अचानक अकेले निकल गया ना फ्लैट से, तो मैं दीवानी की तरह उसको ढूंढती रहती थी कि कहीं हमारे वहां पे 5th फ्लोर में स्विमिंग पूल हुआ करता था, कहीं वो स्विमिंग पूल पे नहीं चला गया, क्योंकि उसकी टेंडेंसी टू गिव अप, क्या वो फिर से कुछ ऐसा तो नहीं कर देगा। तो मैं मोर फियर थी इमरान से ज्यादा, बहुत डरी हुई थी उस वक्त। तो लेकिन उस वक्त ऐसे ऐसे थे कि मेरे कन्विंस करना मेरे रिलेटिव्स को बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैं पहले कन्विंस की अपना बेटा जो सिडनी में रहता है और मेरी बेटी जो यूके में, शी इज अ प्रोफेसर, कि ऐसा दे हैव टू गिव लव टू सिबलिंग जो है अपने, जो पहले अपने भाई को बहुत ज्यादा प्यार देना चाहिए जरूरत से ज्यादा, और अपने पड़ोसी, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि इमरान जब बाहर निकलता है सब्सटेंस अब्यूजेस की भी कुछ बातें होती हैं जो अचानक वो गिव अप छोड़ता नहीं है, कहीं ना कहीं रिलेट कर ही लेता है। तो इसको भी बाहर निकालना, तो उस वक्त अपने पड़ोसी को, अगर आप किसी को बोल रहे हैं थोड़ा देखिएगा ना इमरान को, तो वहां पे थोड़ा झिझक महसूस होता है कि मैं कैसे अप्रोच करूं, वो कहाँ जा रहा है उस पर नजर रखिए। तो अप्रोच करना बहुत मुश्किल है। इट वॉज अ वेरी फेयरफुल फेज, बट उसके बाद बिकॉज ऑफ द मेडिसिन्स एंड मे बी बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ अस बीइंग सो कॉर्डियल विथ ईच अदर, कि उसको मैं दवा, डॉक्टर बोलते थे कि दवा अपने हाथ से दीजिए, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है फेंक देना या छिपा देना, नहीं खाएंगे, क्योंकि वो डिनायल में रहते हैं, नहीं खाते हैं दवा, तो आप अपने सामने दवा देकर खड़े रहिएगा। तो ये जो है, जैसे उन्होंने कहा कि एक षड्यंत्र, तो मुझे लगता था कि मैं दवा है या जहर है, मैं क्या दे रही हूँ अपने बच्चे को, लेकिन मुझे डॉक्टर ने बताया कि इससे उसका अच्छा होगा, मुझे देना है। लेकिन जो भी आउटसोर्सिंग हम लोग मेडिसिन लेते हैं वो तो केमिकल्स का फॉर्म ऑफ केमिकल्स ही होता है, नॉर्मल पीपल जो लेते हैं, तो दैट इज अनदर काइंड ऑफ केमिकल्स वी टेक फॉर आउटसोर्स करते हैं। लेकिन इसका जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए है। तो इसको खुद को समझाना, और जो इमीडिएट क्लोजेस्ट फ्रेंड है इनके, मेरे रिलेटिव्स हैं, उनको समझाना कि बस इमरान का ये केमिकल इम्बैलेंस है, लेकिन उनका भी नजरिया अलग होता है, जो मैं पढ़ सकती थी उस वक्त कि ये क्या समझ रहे हैं इमरान को। तो वो एक तकलीफ है माँ के दिल में, लेकिन तकलीफ से बढ़कर है इसका रिकवर करना। तो वो दवा के जरिए वो रिकवर किया, बट डेफिनेटली इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज फॉर मी एज अ मदर, बट बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, शुक्र अल्लाह का कि उन्होंने हर कदम पे हम दोनों का साथ दिया। हम लोग जैसे एक होता है ना भंवर, when you go to a river or you go to a समुंदर, कैसे आपका बोट बोलिए या जहाज बोलिए वो तो टाइट के साथ कैसे जाता है, तो हम और इमरान वैसे ही टाइट के साथ जाते थे, बट दोनों का हाथ कभी छूटा नहीं, ना उसने छोड़ा ना मैंने छोड़ा। तो बस दिस इज हाउ वी आर गोइंग ऑन। बट शुक्र है इमरान इज मच मच बेटर, और इसका श्रेय जाता है अभिषेक दा को, बिकॉज वो स्पार्क उन्होंने लाया इमरान के अंदर, जिससे ये माई नेम इज इमरान जो है, समझ लीजिए इट्स अ मेडिसिन फॉर द व्यूअर्स, कि आप देखो, इसको परखो, ये क्या है, इट्स अ ट्रू स्टोरी, अनस्क्रिप्टेड ट्रू स्टोरी। आप इनको देखिए, और आपके वहां पे अगर ऐसा कोई मसला है तो बी अ सुपर मॉम। पता नहीं मैं कितना बन पाई कि नहीं, बट बी अ सुपर मॉम। थैंक यू वर्षा। সাউন্ড নয়, লেখা আছে তো, কান বেশি নয়েজ ক্যান্সেলেশন দিয়ে কেটে দেওয়া যাবে। তো আমরা যেটা দেখতে পাই, সিনেমা ফর আ কস্ট কিন্তু একদম সমাজের মূল গল্পটাকে তুলে নিয়ে এসছে আমাদের কাছে বারবার। তাই আমি আবারও অভিষেক স্যারের কাছে জানতে চাইবো যে তারা নেক্সট কি প্ল্যান করছে, যেটা আমাদের সামনে সুন্দর একদম প্লেটে সাজিয়ে দেবেন। Thanks, Porsha, for the question. Cinema for a Cause, as I told you, we work on simple stories and we finally aspire to touch lives. Imran today is a brand ambassador. Brand is where he is talking about mental health. He is talking about his own story. He's talking about things which are not dialogues. They are his own vibrations. Sure. And similarly with Ratna Chaudhary also, she is a supermom. She has shown how the ups and downs of a sea, they have faced all storms together. Yet
the now or the boat of life has carried on in their journey. So it's a beautiful cruise. Both this companionship have taken them forward, and I wish many more families where there is such a situation of mental health, mental illness, they should come up with their stories. They should be brand ambassadors themselves. They should talk about the kind of ailment which they are having, and their caregivers also need to come out and share the different modus operandi, the way they have handled it, because ultimately it's all about management. Absolutely. What Imran we see today so fit, fine, happy, because it has been managed so well. We cannot forget that. Like everything in mental illness is about some kind of hormonal or chemical imbalance, changes. So that can be managed if you are diagnosed early, one. Number two, if you are handled very intelligently, and if you are given the right kind of medicine in the right dose. We see a lot of people totally, very gloomy and very drowsy all the time because maybe the dosage was not right. But in case of Imran, it has been managed so well, and a constant companionship and the caregiver in the form of the own biological mother, what better it could be. So it's a fantastic story which needed to be said, needed to be shared. And I thought that a film would be most powerful medium, and it has touched people, it has made people think, it has stirred up the imagination of families who are suffering. People have written, people are talking about it. So we would say that My Name is Imran, the mission with which we started, we have at least gone ahead. Yes, absolutely. So Cinema for a Cause, to sum up, is all about this. So my next three ventures, one is The Harmonicon, The Harmonica Man. It's about an 80-year-old musician who will be a forgotten chapter very soon. But he has played the most beautiful melodies with maestros like R.D. Burman, like Sachin Dev Burman, like Sudhin Dasgupta, the many times film National Award film composer Mr. Debojyoti Mishra. Kajol Chakraborty today at 80 still plays. He still makes to the different musical studios with his harmonica. But no one knows about his story. Such a musician who has composed lilting tunes, lilting melodies. So we pray that his harmonica never stops. His story needs to be told. So that's why we are making The Harmonicon. We are also making a film called The Nude Canvas, which is about the brave story of a model who thinks that nudity is not all about the body, but it's all about the mind. It's like a prayer. It's like a step towards salvation. It's about what the Hindu temples used to have, that kind of an atmosphere. If you go to Harappa, Mohenjo-daro, if you go to Khajuraho, if you go to Konarak, you will see that the temples have special engravings on the body of the temple where a lot of such nudity has been portraying the societal norms of those days, the societal behavioral cycles of those days. So Shormishta Roy Chaudhary, a young girl from Bhatanagar, has believed in it, and her nudity is to now awaken minds. So The Nude Canvas is a film on that, and the other one is Main Mohini Hoon, which is about a queer Kathak dancer, Kaustav Ghosh, who also believes that he is Mohini from N. Chandra's iconic film Tezab, where Madhuri Dixit was Mohini. So Kaustav vacillates between the existence of Kaustav Ghosh and Mohini. So it's Main Mohini Hoon. So we are making, we have finished the shooting of The Harmonicon and also A Nude Canvas. So we are in the editing stage, and Main Mohini Hoon, we will be going on floors. We are having the workshops. So Cinema for a Cause is about such different stories told differently also, because we never want to take the run-of-the-mill, like path in life. We would like to share stories like Imran's story. We would like to share stories which are worth told, because these have the power, the passion of awakening minds. তাহলে যেটা আমি আগেই বললাম যে
সাইক্রিয়াটিস্টের কাছে যাওয়া মানেই আমি পাগল নই। সাইক্রিয়াটিস্টের কাছে তারাই যায় যারা ভাবে যে আমি পাগল হতে চাই না। তো নিজেকে বদ্ধ রাখার কোনো মানেই হয় না। ঘরের দরজাটা খুলুন, দেখবেন সুন্দর একটা আকাশ যেখানে মুক্ত মনে দুটো পাখি উড়ে যাচ্ছে। আর ডেফিনেটলি চোখ রাখুন সিনেমা করা পজের পর্দায়, কারণ তারা আপনারই পাশের ঘরে ঘটা একটা ঘটনা যেটাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরবে আপনাদের সামনে। আমি বর্ষা আজ এখানেই শেষ করছি।